اچھا آگے تھا م، جان لو کہ جملہ خبریہ کی دو جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ موصوف کر سکیں. مثال کے طور پر میں نے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ یار میں نے پانی پی لیا. میں نے پانی پی لیا. میں ایک مثال دے رہا ہوں. یا زید عالم، زید عالم ہے. زید قائم، زید کھڑا ہے. ضربا زید، زید نے مارا. یعنی یہ ساری جو ہے نا خبریں مل رہی ہیں ہمیں. خبر مل رہی ہے نا کہ ضربا زید، زید نے مارا. قام زید، زید کھڑا. زید عالم، زید عالم ہے. زید شارب، زید پینے والا ہے. جی زید ذاہب، زید جاننے والا. یہ ہمیں ساری خبریں مل رہی ہیں نا. خبر مل گئی. پیچھے ہمیں یہی پڑھا تھا نا کہ خبر جو ہے نا پیچھے ہمیں یہ پڑھا تھا کہ ہمیں فائدہ مل گیا زید کے جانے کا، زید کے کھڑا ہونے کا. ہمیں جو تھا نا پورا جو ہے نا وہ پورا کا پورا جو ہے نا ہمیں معلوم ہو گیا. اچھا آگے ہے. پھر انہوں نے آگے تشریح کی کہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں. یہ دہرا رہا ہوں میں کل والا سبق. جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ جملہ ہے جس کا پہلا جو اسم ہوتا ہے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جس کا پہلا جز فعل ہوتا ہے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. یہ یہیں پہ سمجھ رہے ہیں آپ. جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں، جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں. جملہ اسمیہ وہ جملہ جس کا پہلا جز اسم ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جملہ فعلیہ وہ جس کا پہلا جز فعل ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. دونوں کی تعریف سامنے آ گئی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں. اب استاد جی یا ضرب ضرب زید، ضرب زید میں یہ جملہ 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 فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ ہے کیونکہ یہ فعل ہے نا. ضربہ فعل ہے. آپ صرف میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا ضربہ فعل ہے. جی ضربہ اسم نہیں ہے. جی اسم ضرب ہوتا ہے ہمیشہ. اسم میں بتاتا ہوں. اسم کی علامت سنیں. اسم کی علامتیں آپ میری بات یاد رکھنا. اسم پر شروع میں اسم کا جو آخری حرف ہوگا نا، آخری جیسے زید ان کی دال ہے، یہ سب سن لیں. اسم کی علامت، اسم کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جو آخر ہوتا ہے نا، آخر یہاں پہ زید کے جو ہے تین حروف ہیں، زا یا دال. تو سمجھ نہیں یہ مائک میں نے سب کے بند کر دیے. سب اپنے مائک بند کر لیں پھر سننا. یہ میری بات یاد رکھنا کہ جو اسم کی علامت ہوتی نا، تو اسم کی علامت میں آخری حرف جو ہوتا ہے نا زیدن، تو اس پہ آخری حرف پہ جو ہوتا ہے یا تو پیش ہوگی یا جیسے الٹا دو پیش ہوگی، الٹا پیش. یعنی ایک پیش ہوگی ایک الٹا پیش ہوگی. زید یا دو زبر ہوگے زیدن، یا دو زیر ہوگی زیدن. یہ اسم کی علامت ہے. میری بات یاد رکھنا. ٹھیک ہے. آگے اگر ایسا حرف آ جاتا ہے جس کے شروع میں الف لام آ جائے، وہ بھی اسم کی علامتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو اسم کی علامتیں بتا رہا ہوں بالتفصیل. آپ اس کو آگے جا کے پڑھیں گے بھی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر زید عالم، زید اسم ہے، عالم اس کی خبر ہے. یہ ہو گیا جملہ اسمیہ خبریہ. آگے انہوں نے کہا ہے کہ آگے ایک بات سمجھنے والی ہے. اس کا پہلا جز جو ہوتا ہے وہ مسند الیہ، اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا جو مسند ہوتا ہے اس کو خبر کہتے ہیں. میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ مسند حکم ہوتا ہے اور مسند الیہ جس پر حکم لگایا جائے. یہاں پر جو ہے زیدن، جہاں پر جو ہے نا زیدن عالم، زید جو ہے وہ مسند الیہ ہے، عالم اس کی خبر ہے. زید پہ اوپر عالم ہونے کا حکم لگا دیا گیا. یہ کل والا سبق میں دہرا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ جو ہے نا عالم جو ہے یہاں پر مسند ہے، اور زیدن مسند الیہ ہے، مبتدا ہے، اور مسند خبر ہے. مسند الیہ ہمیشہ مبتدا ہوتا ہے اور مسند خبر ہوتی ہے. پھر میں آگے آپ کو یہ دہرا رہا ہوں کہ اسم مسند اور مسند الیہ ہو سکتا ہے. فعل جو ہوتا ہے نا وہ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا. اور حرف جو ہوتا ہے نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ کل والا سبق دہرا دیا. تو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو پوچھتے رہنا ساتھ ساتھ. یہ جو آگے ہے جملہ انشائیہ، جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ موصوف نہ کر سکیں. پہلے تھا خبریہ، اس کو ہم سچ اور جھوٹ کے ساتھ موصوف کر سکتے تھے. جملہ انشائیہ کو ہم سچ اور جھوٹ کے ساتھ موصوف نہیں کر سکتے.
ठीक है। जैसे उन्होंने मिसालें भी दी हमें दी हैं। अमर जो है, इसको भी हमसे हुक्म है, मैं हुक्म दे रहा हूँ खाना खाओ। आगे आप खाना खाएं ना खाएं ये कोई यानी कि पता नहीं है यहाँ पे चल रहा। फिर नहीं, ला तजरिब, तो मत मार, मैं आपको रोक रहा हूँ तो मत मार, और आप मार भी सकते हैं नहीं भी मार सकते, दोनों इस्तेमाल है इसके अंदर। तो यानी यहाँ पे ना हम सच कह सकते हैं ना झूठ कह सकते हैं। आपको मैं आपने आप किसी को मार रहे हैं, मैंने आपको कहा ला तजरिब, तो मत मार, तो आप मार भी सकते हैं और नहीं भी, आप मेरी बात मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। तो इसलिए कहा कि इसको सच और झूठ के साथ मौसूफ नहीं कर सकते। यानी आप मेरी बात मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। इस्तेफाम, इस्तेफाम का तो सवाल करना। हल जराबा जयीदुन, क्या जैद ने मारा, क्या एक सवाल है ना। इस सवाल में तो इस्तेमाल है, सच्चा भी हो सकता है झूठा क्या नाम है, ना हम सच्चा मान सकते हैं ना झूठा मान सकते हैं। हम कहें कि हल जराबा जयीदुन, सुनने वाले ने कहा शायद जैद ने मारा है, तो हालांकि जैद ने ना मारा हो। और सुनने वाला ही सुने कि शायद जैद ने नहीं मारा, हालांकि जैद ने मारा हो। तो इसके इसमें हम सच और झूठ के साथ मौसूफ नहीं कर सकते। आगे तमन्नी, ये है वकू, वाकया पजीर होने के लिए, मुतवक्की चीज के लिए बोला जाता है। लई तजईद हाजिरुन, लई तजईद जईदन हाजिरुन, कि क्या ही अच्छा होता कि जैद हाजिर होता। ये तमन्ना की जा रही है। और तरज्जी ये है ख्वाहिश के लिए, काश, हसरत के लिए, काश, लाल अमरन गायब, काश कि अमर गायब होता। ये मिसालें उन्होंने दी हैं कि यहाँ जहाँ पर ये चीजें आएंगी वो जुमला इंशाइया होगा। हाँ जी, तरजीह का तर्जुमा बताइएगा दोबारा। तरज्जी का काश, हसरत, हाँ, लअल्ल काश, अमरन गायबन। लाल अमर, काश कि अमर गायब होता। जज़ाकल्लाह। समझा? अकूद कहते हैं मामलात, आपस में मामला करना, ठीक है। अकद, अकद से, जैसे अकद निकाह, मैंने उसकी भी मिसाल दी थी। तो बे तो वश्तरी, तो मैंने बेचा और खरीदा, इसका तर्जुमा बनता है। और अंदर, जैसे अंदर नहीं है, ये निदा है। ये लफ्ज क्या है, निदा है। यहाँ पे आप माशाल्लाह, आप हजरात ने भी मुताला किया, मैंने भी किया, और हम सब भी इसके अंदर रह गए। यहाँ पे जो है ना लफ्ज निदा आएगा, ठीक है। सुन रहे हैं ना आप, वश्तरी तो, और जी जी। अंदर, यहाँ अंदर, अंदर नहीं है, यहाँ पे निदा है, क्या है, निदा, या निदा। अल्लाह, ये निदा है, अंदर नहीं है लफ्ज, ठीक है, इसको ठीक कर लें आप। हाँ जी, तो निदा मैंने का कहा मतलब। निदा का मैंने कहना पुकारना, किसी को पुकारना, किसी को या अल्लाह, या रजुल, सर जी या ये अल्लाह, लफ्ज तरजुमा। मैं मिसाल समझा रहा हूँ ना आपको। या अल्लाह, ए अल्लाह, या रजुल, ए आदमी। तो साहबा के नाम रज़ियल्लाहु ताला अजमाइन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होते थे, फरमाते कि या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह कहते थे ना, हदीसों में आते हैं लफाज। तो वो अल्लाह के नबी को पुकार रहे होते उस वक्त। तो आगे है अर्ज, किसी से अर्ज करना, कोई बात करना, यार आप हम अला तंजिलो बिना फतुसीबा, फतुसीबा खैरन, आप हमारे पास क्यों नहीं आते ठहरते कि आपको हमारी तरफ से कोई खैर पहुंच जाए। तर्जमा सुन रहे हैं आप इसका, अर्ज करें कि आप हमारे पास आए ना, हम आपके लिए खाना भी बनाएंगे, हम आपके लिए चाय भी बनाएंगे। वो सिंध वाले होते हैं ना माशाल्लाह, तो वो यही कहते हैं, यार मौसा साहब, मौसा साहब चाय पियेंगे आप, तो वो चाय के बड़े शौकीन होते हैं। हमारे से पढ़ते थे उधर कोलंबे के अंदर, सक्खर के लड़के थे, और हैदराबाद के, मटियारी के, और कराची के थे। तो ये माशा चाय के बड़े शौकीन होते थे। तो ये जब भी छुट्टी होती तो उन्होंने कहा मोदी साहब चाय बनाते हैं, बस चाय बनाते हैं, आप हमारे पास आए ना, चाय चाय पिलाते हैं आप। तो अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद जाना हुआ, तो वापसी पे कितने साथियों ने फोन किए। जी हाँ जी, तमन्नी लई तजईदन हाजिरुन, आगे मैं कह रहा हूँ अला तंजिलो बिना फतुसी बखैरन, कि आप हमारे पास क्यों नहीं तर्जमा तो ये बनेगा, आप हमारे पास क्यों नहीं उतरते ताकि आपको खैर पहुंचे। लेकिन मैंने तर्जमा बा मुहावरा किया कि आप हमारे पास क्यों नहीं आते। उ- अ, उतरने से क्या मुराद होता है, उतरने से मुराद कि गाड़ी से उतरेगा या बस से उतरेगा या घोड़े से उतरेगा। असल में उस वक्त ये होता था कि लोग जो थे ना, घोड़ों पर, ऊंटों पर सफर करते थे। तो इसलिए उस वो के एतबार से ये जुमला बोला गया कि आप उतर आए सवारी से, ऊंट से या घोड़े से या गधे से, आप हमारे पास उतरे, ठहरे,
تاکہ ہم آپ کا اکرام کریں. تو یہ یہاں پہ بات. اور قسم جیسے واللہ لأضربن زیدا، کہ خدا کی قسم کہ میں ضرور بضرور زید کو ماروں گا. تو قسم کا بھی جملہ جو ہوتا ہے نا یہ بھی انشائیہ کے معنی میں ہوتا ہے. اور تعجب، کسی چیز کو دیکھ کے تعجب کر لینا. ما احسنہ و احسن بھی، کیا ہی اچھا ہے وہ، خوبصورت، کتنا خوبصورت ہے وہ. تو تعجب کے معنی میں بھی یہ بھی انشاء کے معنی میں آتی ہے. آگے. استاد جی ہاں جی جی بیٹا. عقود خبریہ میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں تو سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. عقود، ہاں یہ نہیں، سچ جھوٹ موصوف ہی نہیں کر سکتے ہم. پہلے تو دینا میری بات سنیں بیٹا. ہاں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. پہلے میں انہوں نے یہ کہا نا کہ جملہ جو ہے نا وہ آگے آپ پیچھے چلے جائیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں پر ہم نے یہ کہا تھا کہ مرکب مفید وہ ہے کہ نہیں، جملہ خبریہ وہ جملہ ہے. جملے کی دو قسمیں تھی نا، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ وہ جملہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ موصوف کر سکیں، یعنی سچ اور جھوٹ کے ساتھ نسبت کر سکیں. جیسے انہوں نے مثال بھی دی، زید عالم، زید عالم ہے. زید عالم ہے تو کسی نے کہا نہیں بھی زید تو عالم نہیں ہے. میں نے کہا زید عالم ہے لیکن زید عالم ہے، تو کسی نے مجھے اور نے خبر دے دی کہ زید عالم نہیں ہے. سچ یعنی پہلے تو سچ، میں نے سچ میں سچ ہے، پھر کسی نے کہا نہیں یار زید عالم نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زید عالم نہیں ہے. سچ پہلے سچ کی سمجھ آ گئی، پھر جھوٹ کی بھی آ گئی. یعنی اس میں دونوں چیزیں پائی گئی، سچ بھی پایا گیا، جھوٹ بھی پایا گیا. ہم یہ کہیں گے کہ زید جو ہے نا وہ عالم ہے. کسی نے کہا زید، کسی نے آگے خبر دی کہ زید عالم نہیں ہے، تو واقعہ زید عالم ہے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے زید عالم نہیں ہے. پہلے ہم نے سچ مان لیا، پھر ہم نے جھوٹ کا پتہ چلا کہ نہیں زید عالم نہیں ہے تو جھوٹ. یعنی ایسا جملہ جس میں ہم سچ بھی اور جھوٹ دونوں کی طرف نسبت کر سکیں. لیکن جملہ انشائیہ میں ہم سچ اور جھوٹ کی طرف نسبت کر ہی نہیں سکتے کسی، کیونکہ یہاں پر تو ہے حکم ہے. حکم میں آپ کیسے کریں گے سچ اور جھوٹ؟ جی جو جیسے حکم میں تو نہیں لگا سکتے، نہ نہیں میں لگا سکتے ہیں، نہ آپ سوال، کوئی آدمی سوال کر رہا ہے اس میں بھی آپ نہیں لگا سکتے. ایک آدمی حسرت لے رہا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ توقع کر رہا ہے، اس توقع میں بھی سچ اور جھوٹ نہیں کر سکتے. ایک آدمی عقد کر رہا ہے تو عقد میں بھی سچ اور جھوٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو عقد کر رہا ہے نا. میں نے کہا، میں نے آپ کو خبر دے دی عقد کہ بیت وشتری، تو میں نے بیچ دیا اور میں نے خرید لیا. یہ بات ماضی میں ہے، پکی ہوگی نا بات. سمجھا رہی میری بات؟ جی جی استاد جی. کہ میں نے بیچ بھی دیا، میں نے پکی خبر دے دیا آپ کو، عقد ہو گیا. ٹھیک ہے. آگے یا اللہ، اے اللہ، استاد اللہ کو پکارا. جی ایک سوال ہے. جی جی انشائیہ تو کہتے ہیں ابتدا کو نہیں کہتے، تو پھر یہ نہیں انشائیہ بیٹا، یہ انشائیہ وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ. اچھا یہ جملہ انشائیہ ہے. اچھا آگے جان لیں. فصل ہے آگے، آج کا جو سبق شروع ہو رہا ہے. تو جان لے کہ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے جب کہنے والا سکوت آگے نا، سکوت کرے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب حاصل نہ ہو. میں نے اس کی دو مثالیں دی تھی، ایک میں نے مرکب مفید کی دی تھی اور ایک میں نے مرکب غیر مفید کی دی تھی. میں نے مرکب مفید یہ مثال دی تھی کہ زید جو ہے نا وہ باادب طالب علم ہے. تو ہم اس کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ موصوف جو ہے نا، اس میں ہمیں فائدہ ہوگا، خبر مل گئی کہ میں خاموش ہوا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ واقعی زیاد جو ہے نا طالب علم جو ہے نا باادب طالب علم ہے. آپ کو پوری خبر بھی مل گئی اور آپ کے جو طلب تھی نا وہ بھی پوری ہو گئی. اب میں نے کہا کہ شہر کا دروازہ، یا میں نے کہا کمرے کی کھڑکی. یہاں آپ یہ سوچیں کہ یار کمرے کی کھڑکی، بس اتنا لفظ کہا مولوی صاحب نے. آگے نہیں کہا کہ کمرے کی کھڑکی کھلی ہے یا بند ہے، یا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ کمرے کی کھڑکی کھل جائے، کھول دو، یا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھی شہر کا جو دروازہ ہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یا شہر کا دروازہ بند ہے یا کھلا ہے. آگے آپ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، صرف آپ کو اتنا سمجھ میں آیا کہ شہر کا دروازہ یا کمرے کی. یہاں آپ کے اندر طلب پائی جا رہی ہے، آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوا، اس لیے اس جملے اس کو کہیں گے مرکب غیر مفید. سمجھ آ گئی؟ جی استاد جی، مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا خاموش ہو تو سننے والا کو بات سمجھ میں نہ آئے. مرکب غیر مفید، سننے والے کو خبر یا کوئی طلب حاصل ہی نہ ہو.
خبر یا طلب حاصری نہ ہو. ٹھیک ہے. हाँ समझा ना, मैंने मिसाल दी कि मैंने कहा कि कमरे की खिड़की, तो अब आपको कोई समझ नहीं आ रहा है, कमरे की खिड़की तो समझ आ इतनी है तो आई, लेकिन आपकी तलब होगी कि कमरे की खिड़की से क्या कहना चाहते हैं, खोल दें या बंद कर दें, या कमरे की खिड़की बड़ी है या छोटी है, कोई समझ नहीं आ रही आगे आगे बात, आपकी तलब अभी बाकी है. ठीक है. आगे उन्होंने कहा कि और मुरक्कब गैर मुफीद की तीन किस्में हैं. पहली किस्म है मुरक्कब इजाफी. ठीक है. जो मुरक्कब इजाफी जो होता है ना, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी आपको बताता हूँ मुरक्कब इजाफी की तारीफ. मुरक्कब इजाफी जैसे गुलाम ज़ैदिन, इसके पहले जुज को मुजाफ और दूसरे जुज को मुजाफ ला करते हैं, और मुजाफ ला हमेशा मजरूर होता है. ये तो यहाँ तक तर्जुमा हो गया. मुरक्कब इजाफी वो मुरक्कब होता है कि जैसे साजी किताबुन हामिदुन. हाँ मैं आपको वही देख रहा था मैं अभी ना, थोड़ा सा मैंने कहा आपको थोड़ा खोल के समझा दूं कि किसी चीज की तरफ निस्बत की जाए और इजाफत की जाए. मुरक्कब इजाफी वो होता है कि एक चीज की दूसरी चीज की तरफ इजाफत की जाए, निस्बत की जाए. समझ आ रही. मुरक्कब इजाफी वो मुरक्कब होता है कि जिसमें एक कलिमा की दूसरी कलमे की तरफ इजाफत की जाए, निस्बत की जाए. जैसे मिसाल के तौर पर गुलाम ज़ैदिन, यहाँ पर जो है ना गुलाम की निस्बत की गई है, इजाफत की गई है जैद की तरफ, कि जैद का गुलाम. गुलाम हमने कहा कल अकेला गुलाम तो हमें समझ में ना आया. अब हम जब इसकी इजाफत कर देंगे जैद की तरफ तो हमें समझ आ जाएगा कि ये गुलाम जैद का है, किसी का नहीं है, किसी और का नहीं है, बल्कि ये गुलाम जैद का है. तो यहाँ पर जो है ना एक चीज की निस्बत दूसरी चीज की तरफ कर दी गई. तो अव्वल मुरक्कब इजाफी है, जैसे गुलाम और ज़ैदीन. पहले जो उसको मुजाफ कहते हैं, मुजाफ कहते हैं जिस चीज की निस्बत दूसरी चीज की तरफ कर दी जाए. यहाँ पे गुलाम मुजाफ है, इसकी निस्बत की गई इसकी तरफ, ज़ैदुन की तरफ. तो फरमाने लगे कि पहले जुज को मुजाफ कहते हैं, दूसरे जुज को मुजाफ इलैह कहते हैं, और मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है. ये बड़ी बात गौर से सुन लेना कि मुरक्कब इजाफी वो मुरक्कब है जिसमें एक कलिमा की दूसरे कलमे की तरफ इजाफत की जाए. गुलाम ज़ैदिन, तो यहाँ पर गुलाम मुजाफ है और ज़ैदिन मुजाफ इलैह है. तो यहाँ पर गुलाम की जैद की तरफ निस्बत की गई है, तो हम ये कहेंगे कि गुलाम मुजाफ और ज़ैदिन मुजाफ इलैह. मुजाफ मुजाफ इलैह के साथ मिलकर आगे जो भी इसको जुमला अगर इसमें बनना हो तो इसमें बन जाएगी, या कबरिया बनना हो तो कबरिया बनेगी. ये एक तरकीब है. ठीक है. समझ में आ रहा है सबक. जी जी साजी कुछ कुछ समझ आ रही है. उस्ताद जी गुलाम गुलाम हाँ गुलाम जी जी. सही आपका गालिबन आप लैपटॉप से करें तो आवाज बाउंस बैक करती है. अच्छा मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ. हाँ जी. जी जी वो आवाज फिर दोबारा हमारी सुनाई देती है तो. अच्छा जी चलो जी वो समझ नहीं. मैं मोड कर दिया सबको. अच्छा ऐसे है कि मुरक्कब इजाफी, इजाफी कहते हैं कि एक चीज की इजाफा दूसरी चीज की तरफ की जाए. आपको ना हमेशा जो है ना कॉपी पेंसिल रखा कर, मैंने आपको पहले भी कहा था सबक के दौरान ना कॉपी पेंसिल रखा कर साथ. ठीक है. तारीखें कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो किताब के अंदर नहीं होती, वो लिखवानी पड़ती हैं. कि मुरक्कब इजाफी वो मुरक्कब है जिसमें एक कलिमा की दूसरी कलिमा की तरफ इजाफत की जाए. तो यहाँ पर जो है ना जैद की, गुलाम की जैद की तरफ जो है ना वो इजाफत की गई है, जैद की तरफ इजाफत की गई है. अच्छा तो पहले जुज को मुजाफ और दूसरे जुज को मुजाफ इलैह कहते हैं. ठीक है. यानी गुलाम यहाँ पर जो है मुजाफ है, इसकी इजाफत की गई है किसी तरफ जैद की तरफ. और दूसरा जुज क्या है, मुजाफ जैदुन दिन मुजाफ इलैह, इसकी तरफ गुलाम की इजाफत की गई. समझ में आ रहा है यहाँ तक. ये थोड़ा गौर से समझना इस सबक को, ये सबक बहुत अहम चल रहे हैं अभी. ठीक. ये भी चैट में क्या दे दिया सब चीज में. अच्छा
आवाज साफ नहीं आ रही है, तो दोबारा सुन लें कि मुरक्कब इजाफी वो मुरक्कब होता है कि जिसमें एक कलिमा की दूसरी कलिमा की तरफ इजाफत की जाए। तो गुलाम व जैदिन, गुलाम मुजाफ है और जैदिन मुजाफ इलैह है। यहाँ पर जो है ना, गुलाम की इजाफत निस्बत की गई है जैद की तरफ, तो लिहाजा गुलाम को मुजाफ कहेंगे और जिसकी तरफ इसकी इजाफत की गई है, निस्बत की गई है, उसको मुजाफ इलैह कहेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गई ना बात। आगे है जी उस्ताद जी। मुरक्कब, मुरक्कब बिनाई। मुरक्कब बिनाई और मुरक्कब बिनाई, मजरूर के मैन ही, मजरूर एक आदमी नीचे गिर जाए ना, उसको मजरूर कहते हैं। दिन यहाँ पे नीचे गिरा पड़ रहा है, सही है। मजरूर कहते हैं जो नीचे हो गया। मैंने जेर को जैसे ही कहेंगे आपको उस्ताद जी मजरूर। जेर को जो है ना, जो जेर हो। जाराबा जैदुन बिल, जाराबा जैदुन अमरन बिल असा। तो जहां पर हरफ जर आएगा या इजाफत होगी जो नीचे की तरफ हो जाए, जरूरी नहीं जेर को मजरूर कहते हैं। बाद दफा ऐसे होता है जैसे जाराबा जैदुन आमरन बिल असा, यहाँ पर तो बिल असा मजरूर तो है लेकिन अलिफ इसका खड़ा हुआ है। तो मजरूर से मुराद होता है जिस पर हरफ जर हो या उसकी इजाफत हो रही हो किसी चीज की तरफ, उसको मजरूर कहते हैं। मजरूर की आगे इंशाल्लाह बहस आएगी। तो आप यही समझ ले कि मजरूर जो नीचे गिर जाए। आसानी में आपको आसानी से चुटकुला बता देता हूँ। जो नीचे की तरफ हो, जिसमें बिल्कुल ताकत कम हो जाए, उसको मजरूर कहते हैं। उस्ताद जी इसको इस तरह कहेंगे जिसकी तरफ निस्बत की जा रही हो। हाँ, उसको ही जिसकी तरफ मजरूर। निस्बत की जा रही हो वो तो मुजाफ इलैह हो गया ना, मजरूर। हाँ, आप उसको ये भी कह सकते हैं कि वो मजरूर होगा। लेकिन यहाँ पे मुझसे सवाल किया गया है कि चैट चैट के अंदर, कि मजरूर किसको कहते हैं। मजरूर भाई, जो मैं आपको आसानी से बताऊं, जो नीचे गिर जाए वो मजरूर है, जेर हो जाए, ठीक है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए किया, बाकी इसकी मजरूर की बहस आगे भी तफसील आ रही है। जो नीचे आगे दोम है मरकब बिनाई। बनाई और मरकब बनाई वो बिनाई नहीं है भाई। मुरक्कब बनाई और मुरक्कब बनाई, बनाई वो मुरक्कब गैर मुफीद है कि दो इसमों को एक कर दिया गया हो और दूसरा इसम किसी हरफ को शामिल हो। इसकी तारीफ गौर से सुनना। मुरक्कब बनाई वो मुरक्कब बनाई है जो गैर मुफीद है, वो मुरक्कब गैर मुफीद है। ये गैर मुफीद की बहस चल रही है कि दो इसम हो, उनको फिर एक कर दिया गया और दूसरा इसम किसी हरफ को शामिल हो गया। जैसे अहद अशरा से लेकर तिस आता अशरा, ये असल में अहदों व अशरों, आशरुन व तिसअतुन व आशरुन थे। लिहाजा वाव को हजफ करके दोनों इसमों को एक कर दिया गया और दोनों जुज मबनी होते हैं फतह पर। फतह पर मबनी होते हैं, यानी इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। मैंने शुरू में भी कहा था, मोरब और मबनी की बहस के अंदर मैंने आपको बताई थी कि मोरब वो होता है जिसके अंदर तब्दीली आती रहे और मबनी वो होता है जिसके अंदर कोई तब्दीली ना आए। तो लिहाजा अहदों व आशरों व तिसअतों व आशरों में से वाव को जब हजफ कर दिया तो दोनों को फतह देकर मबनी कर दिया गया। तो अब ये अहद आशरा व तिसअत आशरा हो गए, स्वाय इसना आशरा। क्योंकि इसका पहला जुज मोरब होता है तो कई जगह पर इसनाने आएगा आशरा, इसनाताने आएगा। क्योंकि इसके पहले जुज जो है ना, उन्होंने कहा कि मोरब है, इसके अंदर तब्दीली आती रहती है। मुरक्कब बनाई वो मुरक्कब बनाई है, वो मुरक्कब गैर मुफीद है कि दो इसमों को एक कर दिया गया हो और दूसरा इसम किसी हरफ को शामिल हो। जैसे उन्होंने मिसाल के तौर पर अहद आशरा व तिसअत आशरा से उन्होंने मिसाल दी। ये असल में अहदों व आशरुन व तिसअतुन व आशरन थे। वाव को हजफ करके दो इसमों को एक कर दिया गया। जब दोनों इसमों को एक कर दिया गया और वाव हजफ हो गए तो ये अहद आशरा व तिसअत आशरा हो गए। तो दोनों को दोनों जो है ना मबनी होते हैं फतह पर। यानी इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। गिनती जितने भी है ना, जितने भी अरबी के अंदर गिनती है, इसके अंदर अहद आशरा से लेकर तिसअत आशरा तक, अहद आशरा से लेकर तिसअत आशरा तक जितनी भी गिनती है ये फतह पर मबनी है। ये कुल्ली कहता है। तो स्वाई इसना आशरा के, तो इसमें बाद इसना ताने आएगा, बाद सिंताने आएगा। ये मुख्तलिफ, यानी इसका पहला जुज बदलता रहेगा। तो जिस चीज के अंदर तब्दीली आती रहे उसको मोरब कहते हैं। समझ में आ गई? उसको मोरब कहते हैं। जी आगे है, अच्छा अगली बहस जो है ना वो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा आपको समझा दूं। ये मैं कल पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको ना
उसका थोड़ा सा खुलासा बता दूं। मरकब मना सरफ, और मरकब मना सरफ वो मरकब गैर मुफीद है कि दो इसमों को एक कर दिया, लेकिन दूसरा इसम किसी हर्फ को शामिल नहीं है। पहले में दूसरा इसम हर्फ को शामिल था, इसमें हर्फ को शामिल नहीं है। जैसे बाल बक्का, बाल बक्का ये ना एक इसके बारे में दो कौल हैं। एक कौल तो ये है कि ये किसी बुत का नाम है, और एक कौल ये है कि किसी शहर में बादशाह का नाम था बाल बक्का। तो ये इसकी मैं ना कल आपको पूरी तहकीक बताऊंगा, बाल बक्का की और हाजरा मौत की। इससे मैं ना कल के लिए आपको सबूत दे रहा हूँ, कल आपने इसका मुताला करके ले आना। ये असल में बुत का नाम है, ताकि बाल बक्का कोई समझ ना ले क्या नाम है। और वह हाजरा मौत, और ये जो है ना गालबन यमन के अंदर शहर है, ये शहर का नाम है। इनका पहला जुज मबनी है फतह पर अक्सर उलमा के मजहब पर, और दूसरा जुज जो है मोरब है। तो जान लो कि मुरक्कब गैर मुफीद हमेशा जुमले का जुज होता है, जैसे गुलाम ज़ैदिन काइमुन और इंदी अहद अशर दिरहमन वजा अबाल बक्कू। तो तीनों इराब आगे, पहले में था जहां पे उन्होंने मिसाल दी बाल बक्का, आगे यहाँ पे उन्होंने मिसाल दी वजा अबाल बक्कू। तो दूसरा जुज जो है ना वो मोरब है। अगर इबारत को आप गौर करें ना, तो उन्होंने कहा जैसे बाल बक्का व हाजरा मौतू, इनका जो पहला जुज मबनी है, बाला बक्का, बाला बा आइन लाम बा बाला बा, तो इसमें तो तब्दीली नहीं आई, लेकिन काफ के ऊपर उन्होंने आखिर में जबर दे दी। आखिरी वजह आबा अल बक्कू, यानी ये मोरब है। इसका आखिरी हर्फ जो होता है ना, इसका दूसरा जुज जो है ना वो मोरब है। जैसे हाजारा मऊतू, तो हाजारा मऊतू, जो मऊ हाजारा में कोई तब्दीली नहीं की, मऊतू के ऊपर वो कभी जबर लगा देंगे, कभी पेश लगा देंगे। तो ये आप थोड़ा समझ लें। तो कल आपने इसका बाकायदा मुताला करके आना है। इसमें बाल बक्का को भी आपने आपने देखना है, हाजरा मौत को भी देखना है, फिर गुलाम ज़ैदिन काइमुन इसकी आपने तरकीब भी करनी है, और इसका उर्दू तर्जमा भी करना है। और फिर मैंने सुनना है इन दी अहदा अशरा दिरहमन, कि मैं आपको बता देता हूँ तर्जमा। इन दी अहदा अशरा, मेरे इंदी कहते हैं मेरे पास, अहदा अशरा 11 दिरहम, दिरहम दिरहम, मेरे पास 11 दिरहम है। वजा बाल बक्कू, बाल बक्का आया। जैसे गुलाम ज़ैदिन काइमुन, कि जैद का गुलाम खड़ा है। अब आपने इसका कल मैंने इसका तर्जमा भी सुनना है, फिर मैंने इन दी अहद अशरा दिरहम इसका भी तर्जमा सुनना है, वह जा बाल बक्कू इसका भी तर्जमा सुनना है। जा फेल है या इसम है, ये मैंने पूछना है। और गुलाम ज़ैदिन ये कौन सी तरकीब है, ये कौन सा मुजाफ मुजाफ इलैह, इनका आपस में क्या ताल्लुक है, ये कल सबक पढ़ा के मैंने इंशाल्लाह ये सुनना है। अल्लाह ताला आपको जाय खैर दे, अल्लाह आपका हामी नासिर हो।